question is that all the concerns which have been cited by the Hindenburg report, are we to completely dismiss what they have said, or is there any substance or fact in what they are saying? See, there are three aspects to the Hindenburg report, or three data points. One is, I would say, easily verifiable fact, which you and I can easily verify, and any lay investor can also verify, which are publicly disclosed in annual reports with the stock exchanges, etc. Then the second fact is about shell companies in Mauritius or elsewhere, etc., which is tough for even a regulator sitting in India to verify. Okay, unless they follow the trail, etc. And the third is allegations which Hindenburg has made, which anyone could have made, and these are allegations which have been around for a while. But all these allegations of manipulations and fraud at the stock market, how true are they? I mean, are we to completely dismiss, or are we to believe what Hindenburg is saying? Neither. We cannot completely dismiss also, we cannot completely believe also, because at the end of the day, Hindenburg is a motivated short seller. Their entire game is to bring the stock price down and benefit out of it. So we cannot just... Mr. Subramaniam, क्या ये कह रहे हैं कि अदानी ग्रुप को नुकसान पहुंचाने के लिए ये एक रिपोर्ट बनाई गई है? Are you hinting at that? No, नहीं, ये रिपोर्ट बनाया गया है to benefit from the stock price which had gone up too fast too soon, उसको नीचे लेके आने के लिए, उतना ही. For all we know, हिंडनबर्ग ने कल उनका शॉर्ट पोजीशन या आज उनका शॉर्ट पोजीशन कवर होके उसके बाद उनका काम हो गया, वो लोग पैसा लेके घर चले गए. हम और कुछ मतलब नहीं है उनका अभी. So what should matter to us as this one is whether that impacted retail investors in India, whether that impacted mutual funds in India, other investors, right? Because of this fall. But do you see this as a strategically motivated report? I'm talking about the Hindenburg report. Yeah, strategically from their perspective. No, Hindenburg timed it in such a manner that they released it on one day before the FPO opened. They obviously they have done research. They are a firm which has a market position, and ever since our Harshad Mehta days, आपने serials भी देखा होगा, ये books भी पढ़ा होगा. Ever since our Harshad Mehta days, India में तो short sellers रहे ही रहे हैं. I mean, and even आजकल भी बॉम्बे में short sellers रहेंगे ही रहेंगे. बट ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ, लेकिन मैं शिव भाटिया के पास जाना चाहूंगी. शिव भाटिया जी, मुझे ये बताइए कि जो मिस्टर सुब्रमण्यन ने कहा कि देखिए ये एक मोटिवेटेड रिपोर्ट है और उनकी स्टॉक की जो वैल्यूज थी उसको गिराने के लिए उन्होंने एक असेसमेंट किया जिसके तहत ये रिपोर्ट निकली. तो अब जो विपक्ष जिस बात की डिमांड कर रहा है कि हमें जेपीसी लानी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कोई मॉनिटर्ड कमेटी हो जिसके जरिए इस बात की जांच की जाए, तो जांच फिर किस बात की जाए? अगर मिस्टर सुब्रमण्यन ये कह रहे हैं कि ये एक मोटिवेटेड रिपोर्ट है, तो एक मोटिवेटेड रिपोर्ट को क्या हमें इतनी तूल देना चाहिए जस्ट बिकॉज an outside agency is saying this? म्यूटेड है सर, अनम्यूट कर लीजिएगा. मिस्टर सुब्रमण्यम की कोई मजबूरी हो सकती है कि अभी भी वो इस ट्रैक पे हैं कि हमें अडानी को सपोर्ट करना चाहिए, जबकि 8 से 10 लाख $100 बिलियन मार्केट से उड़ गया लोगों का जो इन्वेस्टर्स हैं आज जिन्होंने मार्केट को खड़ा कर रखा था. और हिंडनबर्ग को आप कैसे झुठला सकते हैं? उन्होंने 16 कंपनियों की आज तक डिफरेंट कंट्रीज, इवन जापान, इवन अमेरिका, इवन यू कैन से द बिगेस्ट इन यूरोपियन कंट्रीज की इंक्वायर किया और उसके बाद वो कंपनियां डिसलॉन्च हो गई. तो आने वाले समय के अंदर अडानी का शेयर, मैं मिस्टर सुब्रमण्यम को बताना चाहता हूं कि 5 साल पहले इसका प्राइस था 174, वो टच करता है 4200 रुपए. और उस इशू को भरने के लिए जिसको ऊँट में जीरा की बात करते हैं 20,000 करोड़, जहां 8 से 10 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स का लॉस हो गया, उसके बाद आप कहते हैं कि बड़े आप भोलेपन से आते हैं और कहते हैं मैं वापस लेता हूं इन्वेस्टर्स के फेवर में, जिनका 8 से 10 लाख करोड़ उड़ गया मार्केट से, कैपिटल उनकी उड़ गई. वो 20,000 करोड़ पे किसको? सिर्फ 12% इन्वेस्टर्स ने उसके अंदर पैसा लगाया था उस इशू के अंदर, और 88% इंस्टीट्यूशंस थे. वो कौन इंस्टीट्यूशंस थे? मैं तो इस फ्रॉड के अंदर सेबी को भी इन्वॉल्व मानता हूं, एसबीआई को भी इन्वॉल्व मानता हूं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनको लोन दिया, ये सब बैंकिंग सेक्टर इस सारे फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है. आज सेबी क्यों जागा?
आज सेबी ने क्यों पूछना शुरू किया? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जाके सेबी को पहले होश क्यों नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, कौन सी कैलकुलेशन और कौन सी वैल्यूएशन आप कर रहे हैं? उस वैल्यूएशन मैं ये सवाल मिस्टर सुब्रमण्यम से करूंगी, उसके बाद मैं विवेक के पास जाती हूँ। मिस्टर सुब्रमण्यम, यू हैव टू आंसर दिस, दैट व्हाई सेबी हैज बीन कीपिंग क्वाइट। सेबी चुप क्यों था? अगर इतनी इरेगुलरिटीज थी तो क्या सेबी को पहले से प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए था? अभी भी क्या इरेगुलरिटी है करके पता नहीं। I mean, at the end of the day, stock price going up and stock price coming down by itself is not irregularity. And the second fact of the matter is, जब बोल रहे थे 100 बिलियन लॉस हुआ, वो नुकसान 100 बिलियन तो 80 बिलियन गौतम अडानी का भी हुआ। रिटेल इन्वेस्टर का कितना लॉस हुआ वो देखिए। वैसा तो पेटीएम 75% गिर गया, कितना लॉस हुआ देखिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ स्टॉक प्राइस ऊपर जाने नीचे जाने में कुछ ये नहीं है। फंडामेंटल फैक्ट में हिंडनबर्ग ने क्या ये अनुमान लगाया है दैट स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन हुआ है। वो मुद्दों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बट इन्वेस्टिगेशन होगा किससे? सेबी का ये है पावर्स है जो विदेशों में मॉरिशस या कोई और इसमें जाके इन्वेस्टिगेट करे। आई डाउट सो मच। ओके, सेबी का थोड़ा लिमिटेड स्कोप है। तो प्लस इन्वेस्टिगेशन इसमें कैसे इनिशिएट की जाएगी? क्या कोई कंप्लेंट करेगा, कोई कुछ कहेगा, उसके बाद से भी इन्वेस्टिगेट करेगा, या फिर सुओ मोटो भी वो कुछ कर सकता है अगर ऐसी इरेगुलरिटी सामने आई है तो? अभी इरेगुलरिटी मैं वही बोल रहा हूँ ना, हिंडनबर्ग ने इरेगुलरिटी करके अनुमान लगा दिया। आप भी अनुमान लगा सकते थे, मैं भी अनुमान लगा सकता था, कोई भी अनुमान लगा सकता था। उससे सभी सुन ले। तो हिंडनबर्ग तो कोई भी नाम भी नहीं जानता था इतना देर, तो कोई हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकाल दिया, उसका बात सुन ले। तो ऑल आई एम सेइंग इज, कोई भी सिर्फ अनुमान लगाने से इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं होता। तो ये इन्वेस्टर शुड डिस्क्लोज हिज और ओन position and make a specific complaint to the regulator, then that regulator can take action. Just because you and I discuss on this show and throw allegations, a regulator is not going to investigate. Why are we attributing so much reputation to Hindenburg? Hindenburg is a small company. It has said that we have a position in the stock market. It is just like Harshad Mehta, जो भी है। So all I'm saying is that just because we have a Hindenburg doesn't mean we attribute any reputation to them. Okay, and I am not अदानी ग्रुप को क्या मिस्टर सुब्रमण्यम आप क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने कोई गलती नहीं की? मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ मैडम, यही गलत बात है। मैं अडानी ग्रुप के साथ कुछ भी ताल्लुक नहीं है, क्लीन चिट भी नहीं दे रहा हूँ। बट आप भी लास्ट वीक दे सकते थे कंप्लेंट, मैं भी दे सकता हूँ, अभी भी कोई इन्वेस्टर दे सकता है, एंड then investigation can happen.